In this video, we will discuss about electronic spectra. As the L1 plus L2, L1 plus L2 minus 1 up to minus L1 minus L2. This is total orbital quantum number or resultant orbital quantum number. Similarly, and we know very well, M क्या है हमारा मैग्नेटिक. अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में घूम रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है, तो वी कैन राइट दिस ml. तो मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाएगा, सो वी कैन राइट ml. एंड दिस इज द स्पिन फॉर टू इलेक्ट्रॉन s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 माइनस 1 अप टू minus s1 minus s2. It means if we have two electron for p2 electron system, if we have two electron, so L1 equal to 1 and L2 equal to plus 1. So capital L will be L1 plus L2, 1 plus 1, 1 plus 1 minus 1, this is 2. This is 2 minus 1, 1, and next 1, 1 minus 1, okay, because here only 1 is remaining, 2 minus 1, 1, so this is 1 minus 1, this is 0, again it will come minus 1 and minus 2, ठीक है. क्यों minus 1 and 0 फिर minus 1 minus 1, this is. So this is the resultant value for the total orbital angular quantum number, because moving electron will have magnetic field, so this. And similarly for s half plus half, it will have 1 0 minus 1, okay. If there are 3 electron, then what will be the value of for s? This is 9, this is half half half, this will be the 3 by 2, 1 by 2, 0, minus 1 by 2 and minus 3 by 2. Similarly for L, we can have the 3 value, okay. Now, if we have L equal to 0, 1, 2, 3, 4, this is the term and this is the symbol, and what will be the term? S, P, D, F, so and so on, okay. So these are the quantum numbers which are for more than 2 electron system, and how electronic spectra will arise from these electronic configuration. For P2 system, first we must know how many energy level will arise from the P2 configuration. कहने का मतलब हुआ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन L सब शेल में है तो वो कितनी बार अपनी एक शेल से दूसरी कक्षा में जंप करेगा, और क्या सभी जंपिंग उसके एनर्जी लेवल्स अलाउड होंगे या कुछ फॉरबिडन होंगे. तो लेट अस स्टार्ट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस p ऑर्बिटल विदाउट obeying the Hund's rule. It may be like this, 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 but all are forbidden, not allowed. It may be like this, it may be like this, it may be like this, or and opposite spin also possible. But all the energy levels are not allowed. And just you count how many energy levels are this P2 configuration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. It means electron in P2 configuration will have 15 energy levels. But all not allowed. कौन से allowed होंगे? Only this. How can we know कि this is the allowed? देखिए, इसके लिए
रसल्स एंड सॉन्डर्स ने एक टर्म दिया जिसको हम कहते हैं रसल सॉन्डर्स टर्म्स या स्पिन. दिस इज द स्पिन, दिस इज द ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों ही एंगुलर हो जाएंगे. एंगुलर कपलिंग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लट्टू की तरह समझिए, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे घूम भी रहा है और इससे टकरा भी रहा है, इंटरेक्शन होगा. तो दिस इज द कपलिंग कांस्टेंट. व्हाट डू मीन बाय दिस? लेट अस कैलकुलेट. 2s plus 1 is known as the spin multiplicity. अकेला टर्म is known as a spin multiplicity. Let us calculate the spin orbital complete constant for the p2 configuration. For this this is the what will be the L value. पहले S की कर लेते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पैरेलल हैं, तो दिस इज 1 + 1, तो 2s plus 1 will be 3. L 1 and 0, 1 and 0, L इक्वल टू कितना हुआ 1, तो दिस इज द P. ओके, आ रहा है अदिति समझ में? दिस इज द 3P. लेटस J की वैल्यू वेरी करती है. अगर ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड है तो L माइनस एस होगा, और अगर ऑर्बिटल मोर देन हाफ फिल्ड है तो L प्लस एस होगा. इन दिस केस ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फिल्ड, तो J विल बी L इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमारा टर्म आया 3P. दिस इज नोन एज द GST और द ग्राउंड स्टेट टर्म. ओके, बट देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी. क्या डिफ़िकल्टी है? जब हम इस तरह से एनर्जी लेवल लिखते हैं तो हमें लगता है कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, पता नहीं हमने एनर्जी लेवल लिखा नहीं लिखा. तो देयर इज ए सिंपल वे टू राइट ऑल द एनर्जी लेवल, दैट इज नोन एज द माइक्रोस्टेट चार्ट. हाउ वी form or prepare this microstate chart? This is a square. This one column and this is horizontal column. This horizontal will represent ms value. m इसलिए क्योंकि सभी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाएगा. ठीक है, s की वैल्यू कितनी है 1, तो इट विल रेंज फ्रॉम +1 0 -1. अदिति ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम? L1 + 1 L2 + 1. इट मीन्स L1 + इक्वल टू 2 है ना. मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 2 1 0 एंड दीज आर द मिरर इमेज -1 -2. लेट अस राइट द all the values. ml equal to 2 and ms equal to 1. It means एक बार समझ लो कि क्या कहना चाह रहे हैं. 0 इसका खाने का नंबर है 1, इसका नंबर है 1. इट मीन्स कि अगर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तभी L की वैल्यू 2 होगी, यानी कि इस पूरे हॉरिजॉन्टल कॉलम के लिए 1 1 होगा तभी L की वैल्यू 2 होगी. अब ये क्या है? ये क्या दिखा रहा है? +1. ये किसकी वैल्यू? स्पिन. स्पिन +1 कब होगी? जब दोनों ही पैरेलल होंगे, यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे, तब स्पिन कैसी होगी? +1. अब 0 स्पिन कब होगी? जब एक +1 हो, एक माइनस होगा. -1 कब होगी? जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे, है ना. अब आ जाइए 1 कब होगी स्पिन ml की वैल्यू? जब इलेक्ट्रॉन एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तब 1 होगी, यानी कि 1 0 1 0 और 1 0. ठीक है, ये स्पिन है, -1 नहीं है. अब स्पिन इसका क्या है? प्लस, यानी कि दोनों क्लॉकवाइज है. ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज. अब यहाँ पे जब आए आप,
जब ऐसी स्थिति आ गई आपके पास कि आपका इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है, यहाँ पे अभी इसमें क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और इस वाले में ऐसे हो रहा है। ये भी तो हो सकता है इस तरह की स्पिन हो, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो हियर विल बी 2 स्टेट्स आर पॉसिबल, यानी कि अब ये एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन हो गया और ये पैरेलल इलेक्ट्रॉन हो गया। आ रहा है समझ में? ये तो दोनों है एंटी पैरेलल। अब जीरो के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? जीरो के लिए ये कंडीशन हो सकती है कि या तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो या इलेक्ट्रॉन इसमें हो, दोनों। अभी डिपेंड करता है, स्पिन नहीं बता रही हूँ मैं, केवल इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ। तो वहाँ पर 2 तरह का हो गया, प्लस और माइनस, ये भी जीरो हो गया, और जीरो और ज़ीरो भी ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास 2 तरह की आ रही हैं एल के लिए। जीरो के लिए हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशंस आ रही हैं कि ये हम एल की वैल्यू लिख रहे हैं, अभी एस की वैल्यू नहीं लिखा है हमने। एस की वैल्यू में तो हमें पता ही है कि अगर इन सब के लिए एस की वैल्यू +1 है तो इलेक्ट्रॉन दोनों ही हमारे पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो दोनों ही हमारे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होंगे। यहाँ पे आती है बात, अब यहाँ पे प्लस माइनस है, ये तो कोई फ़र्क ही नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही जीरो हैं। अब यहाँ पे फिर अगेन 2 कंडीशन आ जाएंगी हमारी, क्या कि हाँ, ये प्लस माइनस का चार्ज किस बेस पे लगाया है? ओ माय गॉड, ये जो हमारा जीरो है, स्पिन की वैल्यू जीरो है ना, तो स्पिन ये है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट मिरर इमेज है, हमें क्या लेना है, ml की वैल्यू -1। तो यहाँ पे हमने अगर 1 लिखा तो ml की वैल्यू ये -1 हो जाएगी, मतलब बिल्कुल मिरर इमेज। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आएंगे, मतलब अब ml की वैल्यू क्या होगी, -1। अब स्पिन तो वैसे ही रहेगा। ठीक है हिमानी, कहीं भी परेशानी हो तुरंत पूछना। रश्मि का अच्छा है, रश्मि तुरंत पूछा, रश्मि को जरा सा कन्फ्यूज़न था, ज़रूर पूछना चाहिए। हमारा ये -2 है, ये ध्यान रखना। हम ये जो 1 1 लिख रहे हैं ये हम ml की वैल्यू लिख रहे हैं, और जो ऊपर लिख रहे हैं वो स्पिन की वैल्यू लिख रहे हैं। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है ना? यस मैम। चलिए, अब हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि चारों क्वांटम संख्याएं किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं हो सकती हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन विल हैव द ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। इनकी सेम है, काट दीजिए, इनकी सेम है, काट दीजिए, इनकी सेम है, काट दीजिए। कितना इजी हो गया, इनकी सेम है, काट दीजिए, इनकी सेम है, काट दीजिए, इनकी सेम है, काट दीजिए। अब हमारे पास कितनी बचे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, कितना इजी हो गया। इसमें हमें फिल करना कितना मुश्किल था, हमारा कोई भी एनर्जी लेवल हमें नहीं पता चल पा रहा था, छूट तो नहीं गया। वेरी इजी टू सी हाउ मेनी एनर्जी लेवल आर देयर। तो P2 कन्फिग्रेशन से हमारे कितने एनर्जी लेवल आए, P2। इसके लिए एक फार्मूला भी है। क्या फार्मूला है? वो फार्मूला है आपका, कोई भी कन्फिग्रेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, उसको हम सपोज n से कर ले रहे हैं। जैसे P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, R क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा, मान लीजिए P2 है, तो P2 के लिए हमने क्या लिख लिया, n नहीं लिखिए, L, इसके लिए कुछ और लगा लीजिए, चलिए n ही लिख लेते हैं, n। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तो हमारी अच्छा कन्फिग्रेशन हो गई। फिर माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा, नहीं यहाँ पे ये रहेगा R-n, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। ये क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। तो अगर हम P2 कन्फिग्रेशन लेते हैं तो हाउ मैनी माइक्रो स्टेट्स आर पॉसिबल, दिस इज़ फॉर द कैलकुलेटिंग माइक्रो स्टेट्स जो हमने अभी निकाली है 15। तो P में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2, 6 - 2 4। ठीक है, अब ये हम इस तरह भी लगा सकते हैं फैक्टोरियल। तो 6 तक फैक्टोरियल है तो हम आराम से 4 तक हम छोड़ देते हैं, 5 × 6 लिख लेते हैं। ठीक है, 4 से 4 कट गए, 5 और 6 बचा। आप तो मैथ के हो, 2 2 3 6, 3 × 15।
इसी तरह हम किसी का भी माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस कैलकुलेट द माइक्रोस्टेट फॉर द D2. D2 के लिए क्या हो जाएगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल? 10. 2 है तो 2 और 10 माइनस 2 8. अगेन हम 8 तक छोड़ देते हैं. 9 10 और ये 2, तो कितने हो गए? 45. इसी तरह से आपको पूरा कैलकुलेट करना है. P1 से लेकर P1 नहीं, P2 से लेकर P6 और D2 से लेकर D10. आप पूरा भी कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एंड द माइक्रोस्टेट्स. क्लोज कर